جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اس وقت بے دینی بڑھ چکی ہے اور محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ برداشت اور تحمل لوگوں کے اندر نہیں رہا، اور جب یہاں تک انسان پہنچ جائیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں۔ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم برداشت کریں۔ آج کلام مقدس میں سے چند ایک مثالیں اور دلیلیں دے کر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتا ہوں پرانے عہد نامہ میں سے۔ مرد خدا یوسف بن یعقوب، جب چھوٹی سی عمر میں اس کے اوپر ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئیں، اسے نفرت کی گئی، اسے رد کیا گیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے بھائیوں نے اسے کنویں میں ڈالا، مارا اور پھر وہاں سے نکال کر بیچ دیا، اور وہ بیچا گیا اور مصر میں لے جا کر وہ غلاموں کی طرح کام کرتا رہا، غلام ہونے کے لیے بیچ دیا گیا۔ یہ سب کچھ وہ برداشت کرتا رہا، یہاں تک نہیں، اس کو غلط الزام کے سبب سے قید میں ڈال دیا گیا، لیکن خدا کو اس کی فکر تھی، کیونکہ خدا نے اسے ایسے حالات کے حوالے کر دیا کہ وہ سیکھے، برداشت کرنا سیکھے، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آنے والا تھا، اگر اس کے اندر برداشت نہ ہوگی تو وہ فیل ہو جائے گا، کامیاب نہیں رہے گا۔ تو جب وہ سب کچھ برداشت کر چکا، آخرکار اس کے بھائی اس کے پاس اناج لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جب اس کے بھائی اناج لینے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، تو وہ اس کے بھائی ڈر جاتے ہیں کہ اب یہ ہم سے بدلہ لے گا، ہم نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، لیکن وہ سب کچھ برداشت کر کے ان کو اپنے گلے سے لگاتا اور ان کو اپنے بھائی کہتا ہے، تم میرے بھائی ہو، ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ایسا انتظام ہوا کہ میں تم سے پہلے مصر میں پہنچا تاکہ میں تمہارا اور تمہارے خاندان قبیلوں کا، گھر کے اہل خانہ کا انتظام کر سکوں۔ اس نے برداشت کر کے ہمیں سکھایا، اس کی برداشت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر کس طرح برداشت کرنا چاہیے۔ پالوس رسول اس کے تعلق سے نہ صرف افسیوں کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں، بلکہ کلسیوں کو جب خط لکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر دیکھیں گے کلسیوں کے نام پالوس رسول خط 3 باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کو ہم یہاں سے سیکھیں گے۔ کلسیوں 3 باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کو سیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم تحمل کا لباس پہنو، اور اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کر کے ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، اور جیسا خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسا ہی تم بھی کرو۔ میرے عزیزوں، برداشت کرنے کی تعلیم کے بارے میں رسول بار بار اس بات کی تربیت دے رہا ہے کہ ہمیں برداشت کرنا ہے، بڑے تحمل کے ساتھ، تحمل کا لباس پہن کر رکھنا ہے ہم نے، اور اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ برداشت کرے، کیونکہ جب ہم برداشت کرتے ہیں تو اس سے ہم میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں۔ یوسف نے برداشت کیا، اسی لیے برداشت کرنے میں اسے یسوع مسیح کی تصویر کہا گیا۔
अगर आज हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते तो मेरे अजीजों, ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेबल बात हो सकती है। यीशु मसीह हमारा ये मुद्दा तो नहीं सुनेगा ना कि हम इंसान थे, हम नहीं बर्दाश्त कर सके, हमसे खताएं हुई, गलतियां हुई, हमने लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, बर्दाश्त नहीं कर सके। इसीलिए यीशु मसीह इंसान बनकर इस जमीन पर आया और उसने आकर सब कुछ मुखालफतें, जमीनी खिदमत में रुकावटें, और जब उसकी खिदमत का सफर पूरा होने वाला था तो आखिर पर उसने इतने दुख बर्दाश्त किए, इतने दुख बर्दाश्त किए, लोगों के ताने, बातें जो उसकी बाबत नाहक कही की जाती थी, और यहां तक कि जब उसे एक मुजरम के साथ खड़ा किया गया और कहा गया, क्या मैं तुम्हारे लिए मसीह को छोड़ दूं या इस मुजरम को, डाकू को, बरअब्बा को छोड़ दूं? तो उस वक्त लोगों ने उसे रिजेक्ट किया और यह कहा कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। तब भी उसने बर्दाश्त किया। यह नहीं कहा कि मैं तो इससे बढ़कर हूं, मुझे क्यों रद्द किया जा रहा है, मेरे लिए सलीब का मंसूबा क्यों बनाया जा रहा है। उसने बर्दाश्त की क्योंकि वो जानता था मुझे ये करना पड़ना है। अगर मैं आज बर्दाश्त नहीं करूंगा तो कल को फिर लोगों का उज़र कैसे दूर होगा। सो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को पकड़कर अदालत में ले जाया गया। पहले काहिनों की अदालत में और फिर रोमी अदालत में ले जाया गया और जगह जगह जाकर यीशु मसीह को सामने खड़ा किया जाता। और फिर जब यीशु मसीह को सलीब का हुक्म दे दिया गया, उसे कोड़े लगाए गए। कितनी दुख दे बात थी। और रोमी कोड़ा जब जिस्म पर लगता तो उसमें से गोश्त खींच लेता, गोश्त निकाल लेता। और ये जुल्म, सर पर कांटों का ताज, सलीब का भार उठाकर पहाड़ी रास्ते पर कलवरी तक पहुंचना, और फिर सलीब पर हाथों में कील ठकवाकर चढ़ जाना, और ये सब कुछ बर्दाश्त करना। मेरे अजीजों, ये छोटी बात नहीं है। सलीब के नीचे से लोग कह रहे हैं, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी तू नीचे उतरा तो हम तुझे मान लेंगे कि तू खुदा का बेटा, हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। और एक डाकू भी उससे यही कहता है सलीब पर, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। ये सब कुछ वो बर्दाश्त करते करते यहां तक कहता है, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु मसीह खुद हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गया, एक मिसाल बन गया, एक नमूना बन गया, और सब कुछ यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया इसलिए कि हमें वो सबक दे सके, हमें सिखा सके कि हमें भी बर्दाश्त करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मजाज थोड़ा सा तीखा होता है, तहम्मुल नहीं उनके अंदर होता और वो बर्दाश्त भी नहीं करते। तो वो ये कहते हैं, हमसे नहीं बर्दाश्त होता तो हम क्या करें। अरे भाई, ऐसा नहीं है। मसीह की तालीम ये है कि वो चाहता है कि हम बर्दाश्त करें एक दूसरे की। किसी भी मामले में कोई बात हो तो हम बर्दाश्त करें, क्योंकि यीशु मसीह ने तालीम देते हुए एक बड़ी प्यारी बात की जो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा, हमारा नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है, आप हैरान हो रहे होंगे इस बात से। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी 12वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहां कुछ लिखा हुआ मिलता है। आइए मेरे साथ देखें कलाम मुकद्दस को। मत्ती की इंजील 24वां बाब उसकी 12वीं आयत लिखा है, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा।
लास्ट टाइम तक, आखिरी सांस तक बर्दाश्त करेगा, वो निजात पाएगा। अगर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं बनेंगे, अगर हम बर्दाश्त करने वाले ना होंगे, ना कर सकेंगे, तो हमारा ये लॉस होगा कि हम निजात नहीं पा सकेंगे। हम यीशु मसीह के जमीन पर आने के उस मकसद को नहीं पूरा कर सकेंगे। यीशु मसीह क्यों जमीन पर आया? लूका की इंजील के अंदर यह बयान है 19वें बाब के अंदर कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। अगर हमारे अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त हम नहीं करते, तो याद रखिए कलाम के अंदर यूं आया है, आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। यीशु मसीह ने फरमाया है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। अगर हमने बर्दाश्त ना किया तो हम निजात नहीं पा सकेंगे, हम निजात नहीं पा सकेंगे। अगर हमने निजात ना पाई तो फिर हमारा नुकसान है या नहीं? फिर हमारा अंजाम क्या होगा? फिर हम बादशाही से बाहर रहेंगे। हम निजात पाकर निजात में कायम नहीं रहते तो हम आसमान की बादशाही में नहीं जा सकेंगे, दुल्हा के साथ दाखिल नहीं हो सकेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम कलाम की रोशनी में अपने अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त को पैदा करें। हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें जैसा कि हुक्म आया है, और एक दूसरे के कसूर भी माफ करें जिस तरह हमारे कसूर माफ किए गए हैं। मैंने और आपने जो कसूर किए थे, क्या वो माफी के लायक थे? तो भी खुदावंद ने हमारे लिए इंतजाम किया और हमारे कसूरों के लिए उसने अपने बेटे को बर्रा बनाकर भेजा। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसका पाक लहू बहा जो हमें हर तरह की नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल बन गया, और इस तरह से हमें सारे कसूरों से मुआफ़ी मिल गई और हम निजात पा गए। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर तहम्मुल पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर। जब हम बर्दाश्त करेंगे तो फिर लोगों के जहन भी हमारे लिए चेंज होंगे। खुदा के लिए, उसके कलाम के लिए, उसकी रास्तबाजी के लिए लोगों के जहन तब्दील होंगे कि यार अगर ये इंसान होकर हमारी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं, सारी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं, आखिर तक बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। इस तरह से लोगों के लिए आसमान की बादशाही का और निजात का दरवाज़ा खुल जाएगा। सो आज के कलाम के सबब से मेरा और आपका खुदा सुनने और देखने वालों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।